Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In this class, we are going to do the next topic, that is selection process. Before this, we have done recruitment. Recruitment क्या होता है? Recruitment is attracting large number of candidates so that they come and give the interview. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को attract करना जिससे वो interview देने आए. There are two types of recruitment that we have studied. First is internal recruitment, wherein the job positions are filled by existing employees. And we also have done external recruitment. External recruitment क्या होता है? जहाँ पे जो खाली positions हैं, they are filled by candidates from outside the organization. So this part we have completely done. Now our second or the next topic is सिलेक्शन प्रोसेस. रिक्रूटमेंट में लोग इंटरव्यू देने आ गए हैं. अब हम क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द सिलेक्शन प्रोसीजर. ये सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करेंगे एंड वी विल बी सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट. नाउ एज आई हैड टोल्ड यू दैट वेरेवर दिस वर्ड प्रोसेस कम्स, दैट मीन्स देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड and you have to learn these steps as it is. ये जितने भी steps हैं आपको sequence में ही learn करने हैं. There are other steps also which I haven't written it right now. Okay, so the first step of selection process is preliminary screening. Now what is preliminary screening? Preliminary screening is actually basic interview. It is the basic interview wherein simple basic questions about the candidate is asked, like his name, qualification, experience, why he left the last job, to which state or city he belongs to, his family background, his marital status, whether he is married or unmarried. Simple basic questions are asked to the candidate. The main motive of asking these basic questions are in order to check the confidence level of the candidate, whether that candidate is confident enough or not to answer questions related to him. क्या वो candidate इतना confident है कि वो अपने बारे में confidently बता सके, right? And ये check करा जाता है whether those उसकी जो qualification है और जो इसका एक्सपीरियंस है दैट मैचेस विद आर रिक्वायरमेंट और नॉट. जैसा क्वालिफिकेशन जैसे एक्सपीरियंस हम चाहते हैं, क्या उनमें वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है या नहीं है, और वो कैंडिडेट में कॉन्फिडेंस है या नहीं है. सो इन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बेसिक इंटरव्यू इज कंडक्टेड wherein the basic questions about the candidate is asked. If that candidate is able to answer the questions and if he is found to be the suitable one, अगर वो सही लगता है, then he goes for the second round. Otherwise इस round के बाद ही candidate को reject कर दिया जाता है and they go back their home. Okay, now whoever is selected in the first step, they go for the second round and that second round is a selection test. Now this selection test is basically a written test wherein a written test is being conducted. इस test को जो qualify कर देते हैं, they go for the third round, and those who are not able to qualify this round, they go back home. Now there are various tests that can be conducted, right? I'm not saying all the tests are being conducted at the same time. सारे test ही conduct करे जाते हैं, no. It depends upon organization to organization, right? Now there are few tests you need to know. The first test is aptitude test. This test is conducted to understand the ability of the candidate to learn new skills in future. अगर कैंडिडेट को फ्यूचर जॉब में, अगर उसे जॉब में रख लिया जाता है एंड न्यू स्किल्स आर टॉट टू हिम, अगर उसे नई चीज़ें सिखाई जाए, whether he has the ability to learn those new skills or not. क्या
उसमें ऐसी एबिलिटी है, वो नई स्किल्स वो कैचअप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा. सो दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. कमिंग टू द सेकेंड वन, ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट रिलेटेड टू द वर्क दैट ही हैज़ टू डू. ये टेस्ट इसलिए कंडक्ट किया जाता है जिससे हमें ये पता चल सके कि कैंडिडेट में कितनी नॉलेज है उससे, उसके काम से रिलेटेड. लाइक इफ ट्रेड टेस्ट हैज़ टू हैपन फॉर मी, अगर मुझे ट्रेड टेस्ट देना पड़े तो मुझसे क्या पूछा जाएगा? इस टेस्ट में ये पूछा जाएगा कि बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कितनी नॉलेज है मेरे पास. दैट मीन्स मुझे जो काम करना है उससे रिलेटेड ही मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. And that is trade test, wherein it is judged whether that person has the knowledge of the work he will be given or not. जो भी उसे काम दिया जाएगा उससे रिलेटेड उसकी कितनी नॉलेज है, राइट. और इसमें क्या दिया जाता, इसमें क्या पता करा जाता है? इसमें ये पता किया जाता है कि अगर उसे कुछ नया सिखाया जाए फ्यूचर में, तो वो कितनी जल्दी उसे अडेप्ट कर लेगा, कितनी जल्दी वो सीख लेगा. थर्ड इज इंटेलिजेंस टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट, टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द कैंडिडेट, कि कैंडिडेट में कितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर है. हिज लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, वो कितना लॉजिक से सोच सकता है, लॉजिक लगा के सोच सकता है, कितना रैशनली सोच सकता है, वो किस टेस्ट में पता चलता है? इंटेलिजेंस टेस्ट में. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, पर्सनैलिटी टेस्ट. नाउ दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन. हिज बेसिक नेचर इज टेस्टेड, कि उसका बेसिक नेचर कैसा है. whether he is the person of he's a cool minded person or he's a short tempered person. cool minded मतलब cool headed ठंडे दिमाग का है, या short tempered है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. whether he's an optimistic person or a pessimistic person, क्या वो पॉजिटिव सोच रखने वाला पर्सन है या फिर वो नेगेटिव सोच रखने वाला पर्सन है, राइट. सो इसमें हम पर्सनैलिटी चेक करते हैं, बेसिक नेचर चेक करते हैं, एंड द आउटलुक इज ऑल्सो चेक्ड. हिज ड्रेसिंग सेंस, हिज बेसिक मैनर्स, राइट. एंड ऑल दीज थिंग्स टेल अ लॉट अबाउट अ पर्सन. वो क्या पहना है, उसके क्या बेसिक एटिकेट्स हैं, विश कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट. ही इज आस्किंग परमिशन टू सिट और नॉट, राइट. ये सब कैसे पता चलता है? through personality test, wherein the basic nature is checked, and second of all the overall outlook, the overall personality of a person is checked. Now coming to the last one, interest test. Here liking and disliking of a person is checked, कि एक person को जो candidate है उसकी क्या लाइकिंग है, उसकी क्या डिसलाइकिंग है, ये चेक करी जाती है थ्रू इंटरेस्ट टेस्ट. सो आई जस्ट रिपीट वंस अगेन, इन एप्टीट्यूड टेस्ट वी चेक द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू लर्न न्यू स्किल. नया चीज सिखाई जाएगी तो वो सीख पाएगा या नहीं. ट्रेड टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि उसे जो काम करना है उसको नॉलेज है या नहीं है. इंटेलिजेंस टेस्ट, डिसीजन मेकिंग पावर इज चेक्ड, हिज इंटेलिजेंस लेवल इज चेक्ड. Here in case of personality test, the overall outlook is checked, basic nature is checked, and in case of interest test, उसका interest check किया जाता है कि उसे किस चीज़ में interest है, क्या उसकी liking है and क्या उसकी disliking है. Now students, the candidates who are able to pass the selection test, they go for the third round, that is final interview, and those who are not able to pass this test, they go back home. The final interview, as the name suggests, that this is the final interview which is being conducted by the panel of interviewers. Here the panel of interviewers, 3-4 interviewers बैठते हैं और कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं.
क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन सिंपल बेसिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, नेम, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, अबाउट द कैंडिडेट, ये भी हो सकता है. एंड दे ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द जॉब ही विल हैव टू डू इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. उनकी ऑर्गेनाइजेशन में उस कैंडिडेट को जो भी काम करना है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं. हियर द कैंडिडेट कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, कैन ऑल्सो क्लियर हिज डाउट्स फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स. अगर उसके मन में डाउट है कि उसको कौन सी जॉब पोजीशन मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है, राइट, सो ही कैन ऑल्सो आस्क हिम द क्वेश्चन. He can also ask them the question if he has any doubt. तो यहाँ पे two way communication है. Interviewers will be asking the question to the candidate, and अगर candidate के मन में कोई doubt है तो वो भी interviewer से clear कर सकते हैं. Right. Now after this final interview में जो clear हो जाते हैं, they go for the fourth round, which is checking references and background. And those who are not able to clear this round, they go back home. Now in the fourth point is checking references and background. यहाँ पे जो candidate final interview को clear करते हैं, they come for the fourth round, that is checking references and background, wherein their family background is checked. क्या उनका family background है, कोई criminal records तो नहीं है, criminal records are checked, कोई criminal records तो नहीं है, right, and references are checked. Now what happens is, जब आप resume देते हो, अपना पूरा बायोडाटा लिख के देते हो, so the organization tells you to write 2 numbers, to mention any 2 numbers. वो 2 numbers किसके हो सकते हैं? उनके कोई फैमिली मेम्बर के भी हो सकते हैं, कैंडिडेट के फैमिली मेम्बर के भी हो सकते हैं, या फिर उनका जो एक्स बॉस है, जो इससे पहली ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका बॉस है, या उनके कोई कलीग हैं, उनका नंबर भी मेंशन कर सकते हैं. सो दे आस्क द कैंडिडेट टू मेंशन 2 numbers, 2 phone numbers ऑफ एनी पर्सन, राइट. अब वो एनी पर्सन कौन हो सकते हैं? उनके एक्स बॉस भी हो सकते हैं, पुराने बॉस हो सकते हैं, या पुराने जो साथ में काम कर रहे थे कलीग्स, उनका नंबर मेंशन कर सकते हैं, या फिर मे बी रिलेटिव या फैमिली मेंबर का भी नंबर मेंशन कर सकते हैं. अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हाँ उनको फ़ोन करके पूछना चाहिए इनके बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? उन फ़ोन पे कॉल करके कैंडिडेट के बारे में पूछ सकती है कि कैंडिडेट का कैसा रिकॉर्ड रहा, राइट, उनका कैरेक्टर कैसा रहा, उन्होंने क्यों पुरानी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी, राइट. तो उन नंबर्स पे फ़ोन करके भी पूछा जा सकता है. सो इट डजंट हैपन्स विद एवरीवन. ऐसा नहीं होता कि हर कैंडिडेट के जो रेफरेंस नंबर मेंशन है सबको फ़ोन करके पूछा जाएगा, बट कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि वो जो नंबर देते हैं उन पे फ़ोन करके पूछा जाता है अबाउट द कैंडिडेट, राइट. सो दैट इज चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड. इन बैकग्राउंड मे बी फैमिली बैकग्राउंड इज चेक्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आर चेक्ड, एंड चेकिंग रेफरेंसेस मतलब आपने जो 2 नंबर मेंशन किए हैं अपने बायोडाटा में, रेज्यूमे में, उन पे फ़ोन करके पूछा जाएगा कि आपने पुरानी ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ी, राइट, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉय थे, आप हार्ड वर्किंग थे, नहीं थे, व्हाई यू लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो उन पे फ़ोन करके भी पूछा जाएगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट वी हैव डन दैट his references and background will be checked. अगर references सही बोलते हैं कि हाँ कैंडिडेट रखने लायक है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऐसा कुछ नहीं है, then selection decision is taken wherein that person is either selected or rejected. If he is rejected, they go back home, and if he is selected, they go for the next round, that is medical examination,
wherein it is checked whether he is physically or mentally fit or not. But medical examination generally defense services में होता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में होता है. नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में मेडिकल एग्जामिनेशन इतना कंपल्सरी नहीं है. अगर वो यहाँ पे फिजिकली मेंटली फिट निकलता है, देन जॉब इज ऑफर्ड टू दैट कैंडिडेट. जॉब ऑफर करी जाती है. फॉर दैट अ डॉक्यूमेंट इज मेड एंड इन दैट डॉक्यूमेंट द टाइटल ऑफ द जॉब इज रिटन. कौन सी पोजिशन दे रहे हैं हम उनको, वो लिखा जाता है. वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटन. The duties and responsibilities that candidate has to perform in the job, that is also written. Then a date is mentioned. एक डेट लिखी जाती है. उससे पहले कैंडिडेट को, उस डेट से पहले कैंडिडेट को साइन करके वो डॉक्यूमेंट वापस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को. साइन करने का क्या मतलब है? उसका ये प्रूफ है कि कैंडिडेट ने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया है. और अगर उस डेट तक वो डॉक्यूमेंट साइन करके नहीं मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या मान लेगा कि कैंडिडेट ने वो जॉब एक्सेप्ट नहीं की है. राइट. तो जॉब ऑफर में क्या है? एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, पोजीशन के बारे में लिखा जाता है, उसके ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखा जाता है, एंड a date is mentioned. Before that date, the candidate has to sign that document and return it back to the organization. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि yes, the candidate has accepted that job offer. and उस डेट तक अगर साइन करके नहीं दिया तो ये क्या मान लेंगे कि कैंडिडेट ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है. ओके, नाउ आफ्टर दिस स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दिस इज नथिंग एल्स बट जब हम ये जॉब ऑफर को साइन करके वापस कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है एम्प्लॉयमेंट का. किसके बीच में? इन बिटवीन दैट कैंडिडेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जब जॉब ऑफर, ये जो जॉब ऑफर लेटर है, जब वो साइन करके दे देता है ऑर्गेनाइजेशन को, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है. किसके बीच में? कैंडिडेट के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. सो दीज आर द 8 steps of selection process. So students, I just repeat once again. The first step was preliminary screening, wherein basic questions are asked. The second was selection test, which is actually a written test. Third is final interview, wherein the panel of interviewers sit together and ask question to the candidate. If like he is fine, he is selected, then his references are checked. उन्होंने जो नंबर दिया है उस पर फ़ोन करके पूछा जाएगा, and maybe his background is also checked. अगर सब सही निकलता है, then selection decision is taken whether to select that person or reject that person. अगर select कर रहे हैं तो क्या करेंगे? We will be doing the medical examination. क्या वो फिजिकली मेंटली फिट है या नहीं है? अगर है, then job is offered to that person. That person will have to sign that letter, job offer letter को sign करना पड़ेगा before the date which is mentioned, and return that letter to the organization. अगर उन्होंने लेटर दे दिया, साइन करके दे दिया before that date, तो मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट is signed. A contract बन गया between organization and that candidate. So this is the selection process which you need to learn in sequence. Thank you.